हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो हम लोग कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ड्यूअलिटी एंड मैश एनालिसिस टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूअलिटी टॉपिक। So now let us see what is duality. So two circuits are said to be dual if the mesh equation that characterize one of them have the same mathematical form as the nodal equation that characterize the other. सो बेसिकली क्या है कि दो सर्किट एक दूसरे के ड्यूअल तब होंगे जब हम एक नेटवर्क में अगर हम मैश एनालिसिस लगाते हैं तो उसमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी, एंड अगर हम सेकेंड सर्किट में नोडल एनालिसिस लगाते हैं एंड उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी, अगर उन दोनों का जो फॉर्मेट है एग्जैक्टली सिमिलर हुआ, देन द टू सर्किट विल सेड टू बी ड्यूअल ऑफ ईच अदर. ओके, so duality does not mean equivalence. It means that the mathematical representation of both the network is same. Okay, so duality अगर है तो दोनों जो नेटवर्क है वो एग्जैक्टली उनकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट नहीं होगी, बट उसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट है वो सिमिलर होगा. ओके, सपोज यहाँ पे मैंने कंसीडर करा है एक नेटवर्क N1. आई एम डिनोटिंग इट विद N1 एंड दिस इज सीरीज RLC सर्किट. ओके, सो दिस इज सीरीज RLC सर्किट. सो अगर हम इस नेटवर्क में KVL इक्वेशन डेवलप करते हैं, ओके, सो लेट अस राइट द KVL इक्वेशन. सो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो सबसे पहले जो साइन आता है वी हम उसको कंसिडर करेंगे, दैट इज -V. देन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, इट इज़ गिवन बाय I into R, or we can also write V is equal to, okay, so V, that is voltage, it is equal to voltage drop across the resistor, it is given by I into R, plus voltage drop across the inductor, it is given by L di by dt, and the voltage across the capacitor is given by 1 by C integration of I dt. Okay, so this is for the series RLC circuit. Similarly हमारे पास एक और नेटवर्क है which is parallel RLC circuit. Okay, so this is network N2. Okay, and this is parallel RLC network. So now इसमें अगर हम KCL इक्वेशन डेवलप करते हैं at this node, suppose this is node A, so अगर हम यहाँ पे नोडल इक्वेशन डेवलप करते हैं और KCL इक्वेशन, ओके, सो लेट अस अप्लाई द KCL एट नोड A. सो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो I of S करंट है it will be equal to, so as all RLC and the voltage source they are connected in parallel, so in parallel the voltage will remain same. Suppose it is V, so I of S, it will be equal to what is the current across the resistance R, it will be given by V by R. Okay, so V by R, and 1 by R we called as conductance. Okay, now what is the current across the inductor, it is given by, let us first consider the capacitor. Okay, so what is the current across the capacitor, it is given by C dV by dt. Now let us consider the inductor. So the current across the inductor, it is given by 1 by L integration of V dt. सपोज दिस इज इक्वेशन 2. सो यहाँ पे हमने जो दो इक्वेशंस डेवलप करी वो एक दूसरे के ड्यूअल है, बिकॉज दोनों का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उन दोनों का फॉर्मेट एग्जैक्टली सिमिलर है, बट वो इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे V है तो यहाँ पे करंट है, एंड यहाँ पे अगर करंट है तो V है, एंड रेसिस्टेंस की जगह यहाँ पे 1 बाय R इज कंडक्टेंस. सो ऐसी इक्वेशंस को हम ड्यूअल नेटवर्क बोलते हैं. ओके, जिन नेटवर्क्स में ये इक्वेशन फॉलो हो जाती है. सो लेट अस सी the two network N1 and N2. So N1 network is series RLC, I have assumed, and N2 is parallel RLC. They are called the dual network, but these network are not equivalent. Okay, and therefore the network N1 cannot be replaced by network N2. The KVL equation for the network N1 has a similar format as for the KCL equation for the network N2. We have seen, okay, दोनों का format exactly similar है. Therefore, if the response of the first network is known in terms of the current, then the response of its dual network for the voltage can be written without actually solving it by using the necessary transformation by the various element. It means अगर हमें एक नेटवर्क की मतलब करंट की इक्वेशन पता है तो दूसरे नेटवर्क की हम वोल्टेज इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट. सो हम हमारे पास कुछ ड्यूअल पेयर्स हैं उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. सो ड्यूअल पेयर्स आर लाइक, अगर
एक नेटवर्क में सीरीज रिलेशन फॉलो हो रहा है तो उसका जो ड्यूअल है इट विल बी पैरेलल. So such type of pair are called as duality pairs. Okay, and if we are writing the KCL in one network, so its dual will be KVL. Okay, so we have to write the KVL equation in the other network. And अगर यहाँ एक नेटवर्क में रेजिस्टेंस है then its dual will be replaced by the conductance. and इंडक्टेंस का जो ड्यूअल है वो क्या है, कैपेसिटेंस है. एंड सपोज अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसका जो ड्यूअल है वो क्या है, करंट सोर्स. सिमिलरली अगर हम एक नेटवर्क में नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं तो अदर उसका जो ड्यूअल पेयर है वो क्या है, मैश एनालिसिस. एंड अगर हम एक एलिमेंट को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं देन उसके ड्यूअल में इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट. एंड सिमिलरली थेवेनिन का ड्यूअल इज नॉर्टन. ओके, एंड टाइसेट का ड्यूअल इज कट सेट. Okay, so these are some duality pairs. Okay, so now let us see a question. Develop the dual of the network shown below. So अगर हमें कोई भी एक नेटवर्क गिवन है तो हम उसका ड्यूअल नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई हाउ मेनी लूप्स आर देयर. सो इस नेटवर्क के अंदर 3 लूप हैं. ओके, सो हर लूप के अंदर आपको एक नोड मार्क करनी है. ओके, suppose I am giving this node as 1. Okay, this is suppose node 1 and this is another loop. Okay, so इसमें हम मार्क कर देंगे suppose this is node 2 एंड दिस इज़ अनदर लूप, इसमें भी हम एक नोड मार्क कर देते हैं, सपोज दिस इज़ नोड 3. एंड आपको एक रेफरेंस नोड मार्क करनी है आउटसाइड दिस नेटवर्क. सो दिस इज़ रेफरेंस नोड, सपोज दिस इज़ नोड 4. ओके, सो इस तरीके से जितने भी लूप्स हैं उन लूप के अंदर आपको एक नोड मार्क करनी है. ओके, उसको अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप नंबरिंग दे सकते हैं. और एक आपको रेफरेंस नोड मार्क करनी है जो कि नेटवर्क के बाहर होगी. अब आपको जैसे सपोज नोड 1 है उसको आपको नोड 4 से कनेक्ट करना है इस तरीके से कि जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो एक बारी में सिर्फ एक ही एलिमेंट कनेक्ट हो. ओके, जैसे सपोज हमें नोड 1 को कनेक्ट करना है विद द नोड 4. सो आई विल कंसीडर 1 एलिमेंट एट अ टाइम. दैट इज सबसे पहले मैंने R1 को कंसीडर करा, फिर जब मैं कंसीडर करूँगी तो मैंने वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करा. सिमिलरली नोड 1 एंड नोड 2 को हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज इंडक्टर. ओके, नाउ लेट अस कनेक्ट नोड 1 एंड नोड 3. सो उसके बीच में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं. सो हमें एट अ टाइम एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है. तो एक बार हम R2 कंसीडर करेंगे और एक बार हम करंट सोर्स I1 कंसीडर करेंगे. नाउ हम नोड 2 एंड नोड 3 को आपस में कनेक्ट करेंगे. इसके बीच में जब हम जाएंगे तो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम 1 एट अ टाइम कंसीडर करेंगे. तो एक बार हमने कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट किया, एक बार हम वोल्टेज के कनेक्ट करेंगे अक्रॉस. ओके, नाउ अब हमें नोड 3 को नोड 4 से कनेक्ट करना है. यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है तो हम 1 एट अ टाइम कनेक्ट करेंगे. ओके, सो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया. ये प्रोसीजर है एंड देन वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस हम कनेक्ट कर लेंगे. ओके, नाउ अब जितनी भी नोड्स हैं आप उसको एक स्पेस में मार्क कर लीजिए. सो हमारे पास 3 नोड थे, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3. और रेफरेंस नोड को हम सबसे नीचे मार्क करेंगे. ओके, सो दिस वाज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 3 एंड दिस इज नोड 4. नाउ नोड 1 एंड नोड 4 के बीच में वोल्टेज सोर्स है. तो वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल पेयर क्या है, करंट सोर्स. तो अब हम वोल्टेज सोर्स की जगह उसका ड्यूअल पेयर बना रहे हैं. तो वोल्टेज सोर्स का जो ड्यूअल पेयर है करंट सोर्स, हम वो डेवलप करेंगे और वो नोड 1 एंड नोड 4 के बीच में है. सो इट मीन्स यहाँ पे हम एक करंट सोर्स डेवलप करेंगे. ओके, लाइक दिस. सो ये जो वोल्टेज सोर्स है इट विल डिलीवर द करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो उसी डायरेक्शन में हम करंट सोर्स को भी रखेंगे. सो इट विल बी IS1, मतलब वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल पेयर इज करंट सोर्स. सिमिलरली 1 एंड 4 के बीच में R1 है. सो जो R1 है उसका ड्यूअल पेयर क्या है, कंडक्टेंस है. ओके, दैट इज G. सो इट विल बी R1 है तो हम उसको G1 से इंडिकेट करें. नाउ नोड 1 एंड नोड 2 के बीच में सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज इंडक्टर. सो इंडक्टर का ड्यूअल पेयर क्या है, कैपेसिटर. सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय C. नाउ लेट अस कनेक्ट नोड 2 एंड नोड 3. सो नोड 2 एंड नोड 3 के बीच में कैपेसिटर है. सो जो कैपेसिटर है उसका ड्यूअल पेयर क्या है, इंडक्टर है. ओके, सो दिस विल बी L एंड ऑल्सो वोल्टेज सोर्स VS2 इज देयर. सो वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल पेयर इज करंट सोर्स. सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द करंट सोर्स. ओके, सो दिस इज
VS2, तो इसका ड्यूअल हो जाएगा IS2। नाउ लेट अस कनेक्ट नोड 2 विद नोड 4। सो यहाँ पे नोड 2 मिस हो गया। सो नोड 2 को जब हम नोड 4 से कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक करंट सोर्स इन्वॉल्व होगा, दैट इज I2। ओके, सो यहाँ पे हम नोड 2 को कनेक्ट कर देते हैं विद द नोड 4। ओके, नाउ I2 आ रहा है, तो उसका ड्यूअल पेयर है वोल्टेज सोर्स। ओके, सो दिस विल बी V2, ओके, प्लस माइनस V2। नाउ लेट अस कनेक्ट नोड 3 विद द नोड 4। सो यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं R3। सो R3 का जो ड्यूअल पेयर है इट इज G3। ओके, सो कंडक्टेंस G3 एंड ऑल्सो वोल्टेज सोर्स इज देयर। सो उसका जो ड्यूअल है वो क्या है, करंट सोर्स है। सो दिस विल बी करंट सोर्स। नाउ दिस करंट सोर्स इज गिविंग द करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बिकॉज हम अपवर्ड नहीं रखेंगे, डाउनवर्ड रखेंगे, बिकॉज इट इज डिलीवरिंग द करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट विल बी IS3। नाउ अब बच गए R2 एंड I1। सो इट इज कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 एंड नोड 3। सो R2 है, सो उसका ड्यूअल पेयर हो जाएगा G2। ओके, सो G2 उसका ड्यूअल पेयर हो जाएगा नोड 1 एंड नोड 3। सो दिस इज G2 एंड ऑल्सो करंट सोर्स इज देयर, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स node 1 and node 3, and it will be negative and positive V1। okay, so this is the dual network।